Hello, children. How are you? I hope you all are fine and taking good care of yourselves. So, today we are going to move on to our next chapter of English Grammar Standard 8, that is, chapter number 5 Models. I hope you would have understood the previous chapters and completed the exercise and watched the video also. So, today we are going to start our new chapter, that is chapter number 5 Models. About models you have already learnt in the previous classes. So, this time we'll learn more in more detail about this chapter. So, before moving on to this chapter, I'd like to show you an animated video. So, let's watch that video. Modal verbs. Type modal verbs. Examples: ability, permission, advice, obligation, possibility, can, could. David can speak 3 languages. He could speak fluent French when he was 5. Can, could, or may. Can I sit in that chair, please? Could I open the window? May I borrow your dictionary? Should. You should visit your dentist at least twice a year. You should try to lose weight. Must or have to. I must memorize all of these rules about tenses. You have to take off your shoes before you get into the mosque. Might, may, could, or can. It looks nice, but it might be very expensive. Richard may be coming to see us tomorrow. Modal verbs asking permission. Modal verbs asking permission. Informal. Can. Can I borrow your pen for a minute? Can I speak to John Wilson? Polite. Could. Could I please have a glass of beer? Could I open the window?
formal. May. May I ask a question, please? May we go home now? Polite. Would. Would you mind if I asked you something? So children, as you saw the animated video, I hope you would have understood about the models. Let's read these sentences. In that, I could wait for you if you want. We must obey the rules of the school. They shouldn't waste any more time and start preparing for the exams. She can do cartwheels. Now in this some highlighted words are given over here. ये सारे जो highlighted words है वो है model words, means उसका दूसरा नाम है auxiliary verbs. Now let's see it in detail. The words in bold are models. Now what do you mean by models? क्या होते हैं? Models are helping verbs or auxiliary verbs that we use to communicate a specific message. हम एक specific message जो communicate करना चाहते हैं, इसलिए ये words use होते हैं. They express modality or the way we say something. मतलब ये हमें ये दिखाते हैं कि कैसे हम बोल रहे हैं, जैसे यू सॉ इन द वीडियो कि पोलाइट वे में या आस्क किसी की एडवाइस लेने के लिए बोल रहे हैं, परमिशन दे रहे हैं, वैसे. अ मॉडल इज़ द फर्स्ट वर्ड इन अ वर्ब फ्रेज. वर्ब फ्रेज जो होता है उसमें वो फर्स्ट वर्ड होता है, वो मॉडल होता है. इट सपोर्ट्स द मेन वर्ब. वो जो मेन वर्ब होता है उसको सपोर्ट करता है. नाउ मॉडल्स डू नॉट हैव एनी इन्फ्लेक्शन. दे डू नॉट चेंज विथ अ चेंज इन द सब्जेक्ट, टेंस, वॉइस और नंबर. इसके टेंस या नंबर या कुछ सिंगुलर प्लूरल कुछ नहीं होता है. दे रिमेन एज इट इज़, जैसे सेंटेंस में दिए. जैसे ही कैन ड्राइव, मतलब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो भी कैन होगा, एंड सब्जेक्ट दे कैन ड्राइव मीन्स सब्जेक्ट प्लूरल हो तो भी वो कैन ही रहेगा. उसका टेंस नहीं चेंज होगा, उसका नंबर नहीं चेंज होगा, कुछ नहीं. नाउ लेट्स सी दिस टेबल. I'll explain you how it was explained in the video. Now the first modal verb can or cannot. Cannot को we can say can't also. ये कब यूज़ होता है, उसका यूज़ क्या है, कब कब हम लोग ये यूज़ करते हैं कैन और कैनॉट. एबिलिटी बताने के लिए कि जैसे एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, ही कैन राइट विथ बोथ हैंड्स. उसकी एबिलिटी क्या है, वो क्या कर सकता है. नेक्स्ट इज़ आस्किंग परमिशन. परमिशन किसी से लेनी हो तो कैन आई बोरो दिस बुक, वैसे हम यूज़ करते हैं. फिर कभी किसी को रिक्वेस्ट करनी हो, कैन यू स्पीक प्लीज़ टॉक सॉफ्टली, तो इसलिए यूज़ होता है. ऑफ़र करते हैं हम किसी को कि कैन आई हेल्प यू विद द प्रोजेक्ट, दैट टाइम वी यूज़ द वर्ड कैन. एंड इन नेगेटिव सेंस वी यूज़ द वर्ड कांट. नाउ द नेक्स्ट मॉडल इज़ कुड और कुड नॉट. वी से इट कुडंट. नाउ अब कुड और कुडंट कब यूज़ होता है. नाउ इन दैट फर्स्ट वी यूज़ फॉर आस्किंग परमिशन. ज़्यादा पोलाइटली अगर हमें उनसे परमिशन लेनी है, वी यूज़ द वर्ड कुड. जैसे कुड आई बोरो योर पेंसिल. फिर रिक्वेस्ट, ज़्यादा पोलाइटली रिक्वेस्ट करते हैं तब कुड यू प्लीज़ कैरी दिस बैग. देन सजेशन देने के लिए किसी को हम लोग कुछ सजेस्ट करते हैं तब यू कुड ट्राई अनदर मेथड. देन नेक्स्ट इज पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी. मगर मतलब अगर कभी कुछ होने वाला हो, इट कुड रेन टुडे, कि शायद होगा, दैट टाइम वी यूज़ द वर्ड कुड. एंड लास्टली कब यूज़ करते हैं, पास्ट एबिलिटी. जब ये वर्ड है कुड, वो पास्ट टेंस में यूज़ किया जाता है. आई कुड क्लाइंब ट्रीज ईजीली, मतलब पास्ट में कर पाते थे तब, वह उसलिए यूज़ होता है. देन नेक्स्ट मॉडल इज़ मे. अब हम मे कब यूज़ करते हैं, रिक्वेस्ट के लिए, जैसे मे आई गो फर्स्ट. ऑफ़र के लिए मे आई हेल्प यू विद दैट बैग. ऑफ़र, किसी को हम लोग कुछ ऑफ़र कर रहे हैं कि क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ, ऐसे.
देन परमिशन मांगने के लिए कि मे आई टेक अ कुकी। देन पॉसिबिलिटी और प्रोबेबिलिटी के लिए, जैसे वी मे नॉट विन अ गोल्ड मेडल, शायद कुछ पॉसिबिलिटी नहीं है कुछ जीतने की। देन लास्टली फॉर प्रोबेबिलिटी विश, प्रोबेबिलिटी जब विश हम कुछ करते हैं तब। मे यू बी सक्सेसफुल इन वॉट एवर यू डू, मतलब किसके लिए हम लोग कुछ विश कर रहे हैं कि तुम सक्सेसफुल बनोगे, कि जो भी तुम काम करोगे इसमें तुम सक्सेसफुल बनोगे। देन नेक्स्ट मॉडल इज माइट। अब माइट, व्हेन डू वी यूज़ द वर्ड माइट? माइट यूज़ होता है पॉसिबिलिटी या प्रोबेबिलिटी इन फ्यूचर, फ्यूचर के लिए व्हेन वी आर कुछ पॉसिबल है फ्यूचर में, दैट टाइम वी यूज़ द वर्ड माइट। जैसे माई कजिन्स माइट कम टू स्टे विथ अस, कि शायद ये होगा फ्यूचर में वैसे। नेक्स्ट इज विल एंड विल नॉट, एंड विल नॉट शॉर्ट फॉर्म है वोंट। अब ये कब हम यूज़ करेंगे? फर्स्टली वी विल यूज़ इट फॉर इंटेंशन, कि होगा ही। आई विल नॉट गो टू द स्टोर टुडे, मतलब नहीं, कन्फर्म है कि नहीं जाऊँगा, दैट टाइम वी यूज़ द वर्ड। देन नेक्स्ट इज फॉर रिक्वेस्ट, कि विल यू गेट मी अ ग्लास ऑफ वाटर व्हेन यू आर रिक्वेस्टिंग समबडी, दैट टाइम यू कैन यूज़ विल। देन फॉर प्रेडिक्शन, कि कुछ आप भविष्यवाणी कर रहे हैं कि होगा ऐसे, शायद हो सकता है, दैट टाइम कि इट विल बी अ क्लाउडी डे टुडे, मीन्स यू आर डूइंग अ प्रेडिक्शन कि शायद वो क्लाउडी डे होगा ऐसे। एंड लास्टली फॉर मेकिंग अ प्रॉमिस, जब आप किसी को प्रॉमिस करते हैं दैट टाइम यू कैन यूज़ द वर्ड विल। आई विल कॉल यू बैक एट द अर्लीएस्ट, मीन्स आप श्योर हो और किसी को प्रॉमिस कर रहे हो, दैट टाइम। नाउ नेक्स्ट इज वुड, वुड नॉट, द शॉर्ट फॉर्म इज वुडंट। अब ये कब यूज़ होता है? वी यूज़ दिस वर्ड फॉर टेकिंग परमिशन, जैसे वुड यू माइंड इफ़ आई ओपन द विंडो, आप किसी से परमिशन ले रहे हो विंडो ओपन करने की। फॉर रिक्वेस्ट, कि वुड यू प्लीज़ लॉक द डोर, किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं तब। नेक्स्ट इज़ फॉर इन्विटेशन, कि आप किसी को इनवाइट कर रहे हैं, वुड यू लाइक टू जॉइन अस फॉर डिनर, दैट टाइम यू यूज़ दिस वर्ड। देन नेक्स्ट इज चेकिंग प्रेफरेंस, जैसे वुडंट यू लाइक टू ऑर्डर चाइनीज़ फूड, मतलब आप किसी की उनको क्या पसंद है उसके लिए आप चेक कर रहे हैं, दैट टाइम यू कैन यूज़ दिस वर्ड वुडंट करके, यू कैन आस्क समबडी। नेक्स्ट इज़ शैल एंड शैल नॉट। अब ये शैल और शैल नॉट कब यूज़ होता है? फॉर टू थिंग्स इट इज़ यूज्ड, एक तो है ऑफ़र के लिए एंड दूसरा है सजेशन देने के लिए। ऑफ़र जैसे शैल आई गेट यू समथिंग टू इट, कोई क्या मैं कुछ ला सकता हूँ आपके लिए। नेक्स्ट फॉर गिविंग सजेशन, आप किसी को सजेस्ट कर रहे हैं कि कोई किसी को एडवाइस दे रहे हैं ऐसे, कि शैल वी प्ले अनदर गेम, की कुछ सजेस्ट करके कि इसके बदले हम ये कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ शुड, शुड नॉट, उसको शॉर्ट फॉर्म है शुडंट। अब ये कब यूज़ करते हैं? रिकमेंडेशन और एडवाइस देने के लिए। रिकमेंडेशन हाउ यू विल यूज़, यू शुड रीड बुक्स बाय अगाथा क्रिस्टी, मतलब आप किसी को रिकमेंड कर रहे हैं, किसी को राय दे रहे हैं कि आप इसकी बुक्स रीड कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ कि एडवाइस कभी किसी को आप दे रहे हैं कि यू शुडंट स्टे अप सो लेट, एडवाइस देते वक्त यू कैन यूज़ दिस वर्ड। नाउ ought to and ought not to, when do you use these words? Advice and for probability, एडवाइस दे रहे हैं दैट टाइम यू ought not to be late, किसी को एडवाइस करे कि आपको लेट नहीं होना है। एंड नेक्स्ट इज़ फॉर प्रोबेबिलिटी, मीन्स द बस ought to arrive soon, मतलब शायद वो जल्दी आ जाएगी। नेक्स्ट इज़ मस्ट, मस्ट नॉट, इसमें ये कन्फर्म ऑब्लिगेशन है कि यू आर यूजिंग दिस वर्ड मस्ट नॉट फॉर ऑब्लिगेशन, जैसे वी मस्ट नॉट टेक, इट इज़ कंपलसरी, कि अननेसेसरी रिस्क नहीं लेना है, कंपलसरी हो दैट टाइम यू यूज़ दिस वर्ड्स मस्ट नॉट एंड मस्ट। आई मस्ट गो होम नाउ, इट इज़ नेसेसरी टू गो होम, सो यू यूज़ द वर्ड नेसेसिटी। Then next is need to and need not, that is needn't. That is also for necessity, compulsion and insistence. Means necessity means I need to buy some medicine, it is वो बहुत ही ज़रूरी है, that time you use the word need to. Then compulsion, किसी को करना ही पड़ेगा कि you need not ring the bell twice, मतलब नहीं ही करना है, compulsory है that time. And then insistence, दैट टाइम वी यूज़ आई नीड टू वेक अप ऑन टाइम, मीन्स इंसिस्ट कर रहे हैं कि नहीं हमें उठना ही है, मतलब उठना ही है।
And lastly, has, have to, do not have to means don't have to. ये वर्ड्स हम कैसे, अकॉर्डिंग टू द कंडीशन वी यूज़ नेगेटिव और पॉजिटिव. एंड नेसेसिटी, फर्स्ट इज़ फॉर नेसेसिटी, जैसे वी डू नॉट हैव टू बाई ग्रोसरीज दिस वीक, ज़रूरत नहीं है, सो डू नॉट हैव टू, तो नेगेटिव में यू विल यूज़. एंड नेक्स्ट इज़ फॉर ऑब्लिगेशन, मतलब वी हैव टू अटेंड द फंक्शन, ये कंपल्सरी है और आपको अटेंड करना है, तो दैट विल कम इन पॉजिटिव सेंटेंस. नाउ अकॉर्डिंग टू द रूल्स, the one more important point is given over here. could, would and may, ये तीन जो वर्ड है could, would और may आर यूज्ड इन फॉर्मल सेटिंग्स, मतलब बहुत ही फॉर्मली आप किसी को पोलाइटली, ज़्यादा पोलाइटली किसी से बात करना चाहते हैं दैट टाइम. एंड वाइल कैन मे बी यूज्ड विथ फ्रेंड्स एंड फैमिलीज, ये जो ऑफिशियल पर्पसेस से आप सेंटेंस रिलेट करते हैं दैट टाइम आपको यूज़ करना है could, would और may, स्कूल्स, ऑफिसेज एंड ऑल. और कैन जैसे इनफॉर्मल वे में विथ फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ आप ये वर्ड यूज़ कर सकते हैं. जैसे हियर स्ट्रेंजर से आप बात कर रहे हैं तो आपको पोलाइट होना पड़ेगा. इन अ फॉर्मल वे यू विल आस्क कुड आई टेक दिस चेयर. और अगर फ्रेंड से आप बात कर रहे हैं स्कूल में तो कैन आई टेक दिस चेयर, ऐसे. नेक्स्ट, द वर्ड नीड as a model verb is mostly used in negative sentences. as I explained you in the previous rule कि जैसे need है वो negative sense में use होता है, या or to convey a negative meaning, means negative meaning दिखाने के लिए we use the word need. जैसे look at the example, he needn't drive so fast, we need to finish our homework over the weekend. So now let's move on to exercise A. You have to circle the correct option to complete these sentences according to the rules जो मैंने आपको explain किए हैं. उस हिसाब से you have to use this words and you have to circle करना है आपको इसमें से जो word, दोनों में से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है. इसमें फर्स्ट वन आपके लिए किया हुआ है, जैसे you leave after the bell rings, means may या would, what will come, you may leave. Then next is dash you mind lending me your markers. अब किसी से आप कुछ मांग रहे हैं तो which word will come, would you mind lending me your markers. Then उसके बाद next is third one, I want to ask if I would कि could you call you today. अब इसमें ज़्यादा फॉर्मल वे आप हो रहे हैं कि किसी से आप पूछ रहे हैं तो you will use the word could. Then next one is you cannot कि would not drive so fast on the road. ये ज़रूरी है, आपको नहीं ड्राइव करना है, so cannot you will use. Then next is dash you just wait for a second. It is very politely you are asking, so could you just wait for a second, ऐसे हम यूज़ करेंगे. Next is Rahim can या may recite the names of all the states and their capital. अब रहीम के बारे में you are already knowing रहीम, तो आप polite way नहीं, means friendly way में you have to use can. Next is dash you play the violin as a child. अब now you are asking somebody, so it should be more polite, that is you have to use the word could. The last one is they could not कि may not enter the class because they were late. Now this one, it is in the negative sense, so you will use the word could not politely, as you are using in negative sense, but you should talk to them politely. Now next is exercise number B. In that some models are given in the help box over here. You have to use according to the sentences. In that first one is already been done. Jessica should have told her family the truth about what she had done. Now it is very compulsory कि family से कुछ नहीं छिपाना, so you will use the word should. Now the next one is why didn't you tell me that you were eating at your friend's house. फ्रेंड्स के हाउस वहाँ पे आप खाना खा रहे हैं तो आई डैश हैव कुक सो मच फूड, मतलब तो फिर इतना फूड कुक करना ज़रूरी नहीं था, सो नीडेंट, यू विल यूज़ द वर्ड नीडेंट.
The third one, why did you wade so far into the water? अब ये you are using the word might have drawn, मतलब ये शायद पॉसिबल है फ्यूचर में. दैट्स वाई आप क्यों कौन सा वर्ड यूज़ कर रहे हैं? माइट. जो फ्यूचर में आई टोल्ड यू इन द रूल्स ऑल्सो चिल्ड्रन दैट फ्यूचर में जब ये आप प्रेडिक्ट कर रहे हैं, कुछ बोल रहे हैं फ्यूचर के लिए, पॉसिबिलिटी है फ्यूचर में, दैट टाइम यू हैव टू यूज़ द वर्ड माइट. देन फोर्थ वन, आई डैश हैव गॉट अप सो अर्ली इन द मॉर्निंग. नीडंट. In this it is for negative sense, you will use the word needn't. Then एकदम कंपल्शन नहीं है इसीलिए शुड नहीं यूज़ करेंगे, वी विल यूज़ द वर्ड नीडंट. हैव गॉट अप सो अर्ली इन द मॉर्निंग. आई डैश हैव स्लेप्ट फॉर सम मोर टाइम. अगर इतना जल्दी नहीं उठे होते तो क्या होता? आई कुड हैव स्लेप्ट, थोड़ी देर और सोने मिलता. नाउ द नेक्स्ट वन, द सेम वे डियर चिल्ड्रन, इन ऑल द sentences you have to use the same words